one thing I would like to say again is that there is never a coincidence in Guruji's world. Everything, whether it's big, small, good, bad, not so good, whatever it is orchestrated by Guru Sahib himself. And वो कहते हैं ना कि अपना कर्म है, तो अपना ही कर्म है वो हमारे आगे आता है और हमें वो शुक्राने और सब्र के साथ फेस करना है, और वही सीख हमें गुरुजी देते हैं. तो जनरली क्या होता है कि अगर तो मन चाहा मिल जाए, और वट एवर यू प्लान्ड, और लाइफ ट्रैक पे अगर उसके हिसाब से चल रही है, देन इट्स लाइक वाह भाई वाह, हमने ये डिजायर किया था, हमें ये मिल गया, ये हमारा सत्संग हो गया, जय गुरु जी. बट नहीं, इट इज वे वे बियॉन्ड दैट. सो सबसे पहले तो as I said, there's never a coincidence. Your soul is literally chosen by Guru Sahib himself. And the timing, the way he'll pick you, when he'll pick you, why he'll pick you, that's totally, totally up to him. और बहुत अमेजिंग चीजें हमने देखी, सुनी, समझी, सीखी while Guruji was in his physical form. And after he left his chola, I think the divinity, the miracles, the sangat, everything increased like many, many, many fold. And this also was his design. And why he, handpicked a few people, क्यों कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें तब दर्शन दिए जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और क्यों कुछ लोगों को बाद में अपने से जोड़ा, उसका आंसर मेरे पास नहीं है. सिर्फ इतना मैं कह सकती हूँ कि गुरु साहिब के दरबार में हम उनके बुलावे से आते हैं. हालांकि कोई जरिया हो सकता है बन जाए, एंड वी आर ऑल गुरुजी संगत, वी आर ऑल हिज वेसल्स. He might connect, different people through us, but the ultimate invitation comes from Guruji. And imagine, take a moment to congratulate ourselves कि अगर आपकी सोल को गुरुजी ने खुद बुलावा देकर अपने साथ जोड़ा है, तो आप ये सोचो कि आप मुबारकबाद के पात्र हुए कि नहीं. So a quick recap of certain things that sort of cemented my faith in Guruji, while he was in physical form, and then journey beyond physical form and what it is today. So मैंने बताया था that late 90s, I think 99 में गुरुजी का बुलावा आया था, through my parents आया था. And that's why my father has a very, very special place in my life, not because he's just my father, but he's also the biggest influence in my life, and he's also my spiritual guru and my coach. And mostly people say कि Guruji के दरबार में हम तब आए when we were going through some problem. Well, I was invited into his darbar when I had absolutely no problems. I was footloose, carefree, absolutely living the life. I was in college, and did not have any major responsibilities, did not have any major concerns, and all was good. But the very fact he called me into his darbar, and then my connect with him as an individual soul, regardless of who my family was, or my father connected differently, my sister connected differently, my mom connected differently, but the love he gave. जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके हाथों से प्रसाद भी खाया, उनके हाथों से लंगर की प्लेट सजी हुई भी खाई, उनके साथ शादियां भी अटेंड करी, उनके हाथ पांव भी दबाए, उनके साथ गाड़ी में भी घूमे, उनका झूठा चाय और नारियल पानी भी पिया. तो सब ब्लेसिंग्स इफ आई थिंक बैक मिली. उन्होंने बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे अपनी जूती जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उतार के उन्होंने दे दी. एंड वो देते गए और मैं लेती गई, वो देते गए और मैं लेती गई. और तब कभी ये नहीं सोचा था कि पता नहीं लाइफ में आगे और क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कि वो प्रेप कर रहे थे और ब्लेसिंग्स दे रहे थे टू endure or face whatever life will unfold. And everything that happens under his reign has a meaning.
और वो जरूरी नहीं है कि अगर आपको आज सत्संग आपने सुना है या आज कोई सपना आया या ड्रीम आया है, यू डोंट रियली हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इंटरप्रेट कि ये क्या था, ये क्यों था. Just sit back and relax and watch the bigger picture unfold itself. And that's how amazing his world is. And Guruji would say himself कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं जो भी सिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और सिखाता हूँ. सो देर इज नो थियोरी एंड एंड ट्रू. जो भी गुरुजी ने सिखाया है, जो भी दिखाया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया है. कोई डिस्कोर्स, कोई प्रचार, कोई भाषण, कोई गाइड बुक, कुछ भी नहीं होता था. जो मेरा फेवरेट सत्संग है, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, and I think it applies to each one of us, is a conversation between Guru Sahib and my father. So this was many years ago. I don't remember which year, but मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुजी के पास जब जाते थे तो उठने का दिल नहीं करता था. तुम जितने भी थके हुए उनके दरबार में पहुंचते थे, ऐसा लगता था कि अगर आपके 12, 1, 2, 3 भी बज गए हैं तो बस थोड़ी देर और गुरुजी बिठा लें. ऐसा उनका तेज, ऐसा उनका नूर कि कोई वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते. एंड वैसे ही एक रात थी, एंड गुरुजी वाज वेरी 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 हम्बल. अपने हाथों से उन्हें प्रसाद देना, हर एक संगत को ऐसे करके वो ग्रीट करते थे. तो रात के आई थिंक 2 बजे होंगे और पापा गुरुजी के पैर दबा रहे थे. तो पैर दबाते दबाते माय डैड वाज आल्सो फीलिंग वेरी मेलो, एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर संगत के साथ. सो ही आस्क्ड माय डैड कि जनरल साहब, आपको रिलीजन के बारे में कुछ पता है? सो वो होता है ना कि तुम अपनी धुन में पैर दबा रहे हो, रात के 2 बजे हैं, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है. तो एकदम उनकी आंख खुली. तो ही सेड, गुरुजी मैं तो फौज से हूँ, और फौज में मेरा एडीसी मुस्लिम था, मेरा एलओ क्रिश्चियन था, और जो मेरा कमांडिंग ऑफिसर था वो सिख था, और हम एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते थे. तो फौज में कोई रिलीजन का कोई ऐसा लंबा चौड़ा कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता. सो गुरुजी लुक्ड एट हिम विद अ स्माइल एंड ही सेड, खाना तो खाते थे लेकिन रिलीजन के बारे में क्या पता है? And then, my dad said, I've read this book when I was a major in the Indian Army, and he named the book, जिसका मेरे को याद नहीं आ रहा. तो religion के बारे में वो book पढ़ी थी, लेकिन कुछ खास याद नहीं है. So then Guruji heard this and he got up जमीन से और अपने कुर्सी पे वो जाकर बैठ गए, सिंहासन पर. And then he started reciting literal verbatim from the Quran, the Bhagavad Gita, the Bible, Guru Granth Sahib. Literally, quotes from these books, and went into a state of trance for about, I think, 10 to 15 minutes. और जब गुरुजी ऐसे ट्रांस में लिटरली नरेट कर रहे थे फ्रॉम ऑल द होली बुक्स, तो जितनी भी आसपास संगत बैठी थी सबकी तब तक नींद खुल चुकी थी कि सब चौकन्ने होकर बैठ गए कि वाओ, व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग. और after a few minutes after reciting those verses from the holy books, he opened his eyes and gave a hard look and said, कुछ समझ आया? And my dad said, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं समझ आया. And then he smiled and he said, अरे कुछ ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है. मैंने ये कहा है कि सबसे पहले God is one. तो आप जिस किसी में भी विश्वास करते हो, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो नानक है, चाहे वो क्राइस्ट है, शिव शंकर है, अपनी रोजमर्रा मटीरियलिस्टिक दौड़ धूप से 10 से 15 मिनट आप रोज निकाला कीजिए शुक्राना करने के लिए. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जिस किसी का भला कर सकते हो करो और अनकंडीशनली करो. नंबर 3, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. और ये 3 छोटी छोटी चीजें हमें वो बताकर गए. और हम इंसान ऐसे हैं कि हम these things sound very simple, and when it comes to executing and implementing, हम उसमें भी मार खा जाते हैं. And Guruji would say,
कि मैं तुम लोगों को कीचड़ से निकालता हूं, तुम फिर कीचड़ में घुस जाते हो। और 2020 एक ऐसा साल चढ़ा है पूरी दुनिया के लिए कि हिलाकर रख दिया है इन एवरी एस्पेक्ट, और इतना दुख है आसपास कि पीपल विल रीच आउट, एंड पर्सनली दे विल रीच आउट टू मी विद क्वेश्चंस लाइक कि हम अमृत वेला भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को फाइनेंसेस की तंगी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो यू नेम इट, द लिस्ट इज एंडलेस। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज दिस एक्सपेक्टेशन कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट नंबर वन, हम सब गुरु की संगत है, कोई गुरु जी की संगत में ऊंचा या नीचा नहीं। जस्ट बिकॉज आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग गुरु जी डज नॉट मीन दैट आई बिकम गुरु जी और आई नो एनी बेटर देन एनी ऑफ यू। गुरु जी इज गुरु जी, अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप उनके साथ जोड़िए। All I can tell you is that Guruji used to say, नानक दुखिया सब संसार। तो ऐसा कौन सा दुख है जो हमसे पहले किसी पे नहीं आया या हमारे बाद किसी पे नहीं आएगा। हमेशा अपने आप को ये याद कराना कि कर्म बलवान है, गुरु माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करता। इसलिए आप जो भी कुछ करते हो, जग की चिंता किए बगैर, लोगों की चिंता किए बगैर, परसेप्शन की चिंता किए बगैर, अच्छी नीयत से आप करो। Sometimes in your life you will be required to make very difficult choices, and I've done it personally with an understanding that I will be ridiculed by one and all, but taking that leap of faith। एक तो होता है ना कि सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं तो तुम कहते हो कि चलो भगवान का नाम लेकर उतर जाएंगे। दूसरा है कि सामने अंधेरा है, कुछ सीढ़ियां नहीं नजर आ रही, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, फिर भी तुम गुरुजी का नाम लेकर आप कूद जाते हो कि गुरुजी संभाल लेना। दैट इज ब्लाइंड फेथ, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल, इन फैक्ट वी ऑल नीड टू वर्क ऑन। Blind faith, surrender, and that attitude to be able to see the silver lining in the darkest of clouds। क्योंकि ऐसा नहीं है कि I always say that all of us are dealing with some issue, fighting some battle or the other, known or unknown, and what sees us through is our own mindset, our own connection, our own faith, our own surrender, because once there's acceptance, right, एक बार आप एक्सेप्ट कर लो तो वो दुख खत्म हो जाता है, वो ईगो खत्म हो जाती है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इनफैक्ट आपकी प्रेयर, आपकी अरदास चेंज हो जाती है कि गुरुजी कोई बात नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरी बाजू थाम के रखना और मुझे माफ करना और मुझे सही रास्ता दिखाना। And people ask me, do you pray a lot? Do you do this? And I tell them, no, I don't. I think, and I'm going to share this with everybody, the only prayer that I will probably do several times a day, besides, doing Aarti, Mantra Jap as frequently as you can, is, with a very clear heart, you tell Guruji कि Guruji, मुझे माफ करो, कोई भी गलती मुझसे हुई हो, तन से, मन से, कर्म से, वचन से, इस जन्म में या किसी और जन्म में, जाने में या अनजाने में, आप मुझे माफ करो। और आपका गुरु इतना दयालु है कि ये आप खुद ही परख लेना कि कितनी जल्दी गुरुजी आपको माफ करते हैं। एंड इमेजिन the sole creator of universe, Mahashiv himself, will find a way to interact with you, to connect with you through either dreams or telepathy or shabad kirtan। And और जब आप गुरु जी के फोल्ड में आ गए हो, बल्कि आप नहीं आए हो, वो खुद लेकर आए हैं, तो फिर चिंता किस लिए। Just face everything with a positive attitude, and the line that I very very commonly use is, feed your faith over your fear। आप जिसको फीड करोगे आपके अंदर वो ही बढ़ेगा। तो make the right choices, and don't always try to make the simplest choices, but seek his guidance every step of the way, and that's what I do।
And I said that 2020 has been a very, very difficult year. Sabse pehle to because I was worried about my father's health. He was diagnosed with fourth stage lung cancer, which was absolutely heartbreaking. But again, मैंने मैंने यही सोचा गुरुजी से, ऐसे गुरुजी देखो, I know he's lived a great, a full, a long life, and a really good one. और उनका पैशन है गुरुजी का गुणगान करना, सत्संग करना. um, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, ऐसे गुरुजी, he served the nation via the Indian Army for almost 40 years. और हो सकता है जाने में अनजाने में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, LOC के ऊपर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो. और एंड आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि शायद वो उनका जन्म कर्म का कुछ हिसाब किताब इसी जन्म में सेटल कराकर, एंड मे बी ही वॉन्ट्स टू टेक हिम ऑन टू अ हायर जर्नी, एंड वी ऑल वांट टू बी ऑन दैट पैथ ऑफ सैल्वेशन. और तभी हम कहते हैं कि गुरुजी जो भी है, अब आपकी संगत बनकर आए हैं, तो हमारा जो भी हिसाब होएगा जन्म कर्म का, पिछले जन्म का या अगले जन्म का, या जो भी होता है इसी में सेटल करा देना. दिस इज माय हार्टफेल्ट प्रेयर, because ultimately we all want moksha. At least I personally don't want to come back again. So what changes with Guruji is your mindset. You come from a different place and you start thinking differently, and you start reacting differently. And that said, we are mere mortals. हम ह्यूमन बींग्स हैं, और हमें भगवान ने एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन किया है. एंड ऑल दोस थिंग्स, मोह, माया, एंगर, ग्रीड, लस्ट, हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है. सो दैट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ फाइटिंग दोस थिंग्स एंड हैविंग दैट रियलाइजेशन टू कीप दीज थिंग्स एट बे. जैसे अगर आप सेवा भी करते हो, तो सेवा में कभी चेक योरसेल्फ के अहम ना आए कि मैंने किया है, या मेरा सत्संग है, या मैं सत्संग कर रही हूं. नहीं, गुरुजी का सत्संग सिर्फ गुरुजी का ही होता है. नाम डज नॉट मैटर. किसका नाम आ रहा है, किसकी फोटो आ रही है, check yourself, where is your focus. हमारा focus, as especially the sangat that has met Guruji in while he was in his physical form, there is an added responsibility on each one of us to spread his name, to spread his word, to steer people in the right direction, so that we don't lose focus. आजकल इतने वहम, ये कर लो तो ये हो जाएगा, सबको ड्रीम आ रही है, सबको मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के. एंड just check yourself कि we say it repeatedly that while Guruji was in his physical forms, there were things that were done in a certain way, and let's not reinvent the wheel. जो प्रथा, जो गुरुजी ने जैसे हमें अपने टाइम पे रोज कर कर दिखाया, सिखाया, कोशिश कर कर उसी पैथ को फॉलो कीजिए. Satsangs happening at a grand level with a lot of pomp and show. The focus is Guruji, his message. His message was simplicity. His message was no ahem, no vahem, no rituals, no superstitions, no ifs, no buts, no logic. और गुरुजी ने अनगिनत टाइम अपने दरबार में लॉजिक, इफ, बट, साइंस, प्रैक्टिकलिटी को एकदम फेल करके दिखाया है. एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई हैव सीन दैट हैपन first hand, sorry. And Guruji, has the power. Even back then he had the power to foresee, to forewarn, and he will connect with you at your level. If you're a student, you're seeking to get answers about your question papers, he will do that for you. If you are a patient and you've come to Guruji's darbar कि भगवान मेरे को ठीक कर दो, तो अगर आप शुगर पेशेंट हो, वो आपको मीठा खिलाकर आपका इलाज करेंगे. And I have seen people with terminal diseases who've come into his darbar after they've been the world over. कौन से डॉक्टर्स, कौन से ट्रीटमेंट्स उन्होंने नहीं कराए, और खाली लंगर प्रसाद खाकर, शब्द कीर्तन सुनकर उन्होंने लोगों को कल्याण बख्शा है. तो आप सोचो कि ऐसा पावरफुल गुरु अगर आप उनकी छत्र छाया में बैठे हो, तो फिर
बाकी लाइफ में मांगने के लिए रह क्या जाता है? And I know it's not easy, because surrender is not easy. There are a lot of doubts that come to our mind, and we react and we act. And I've done the same. I was going through a personal situation, and I was so upset about, whatever was being said and how everything was being perceived and how everything was being communicated, that for a second, I got reactive too. At least for a week, I started making phone calls, trying to justify myself. And then I called up one person and I asked this question, that what does spirituality teach you? What is the expectation? Is the expectation to keep quiet, take the higher ground, or is the expectation to, pick up, जैसे कहते हैं अपना तीर कमान उठाओ and fight back? So what is the right thing to do? And then, I get this quote a couple days later, that something to the effect of, I don't remember, that people who know you don't need any explanations and will trust you regardless. And people who don't believe you, or something like that, there is nothing that you can say or do to change their mind. So, and again, I'm the kind of person who really leans on her, sixth sense, her gut, the inner voice. And then, the inner voice, which I believe is of him, said, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा. And that's it. I was like, I was so uneasy myself. I was trying to chase people, trying to talk to them that, hey, listen to me, hear me out. And for some reason, I made 2, 3, 4 phone calls. And जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, उनको जैसे गुरुजी ने ब्लॉक ही कर दिया हो. And when those people came back that, hey, we should talk. And I was like, you know what, there is really nothing left to talk. So I don't want to say anything anymore. And since then, I'm thankful to Guruji for everything, for a roof over my head, for keeping my life going. And more than ever, I think I've now been doubling down on, satsangs and attending satsangs, sharing satsangs. And this to me is the biggest blessing. Like, I always say this, that life में आप जितनी भी उतार या चढ़ाई से आप गुजर रहे हो, और उस वक्त अगर गुरुजी आपको ये हिम्मत दे रहे हैं कि आप सीना तान कर, बगैर अपनी आईलिड्स को बैट किए हुए अगर आप शुक्राना करने की आप हिम्मत रख रहे हो, तो वो हिम्मत उनकी ब्लेसिंग है, वो स्ट्रेंथ उनकी ब्लेसिंग है. स्ट्रेंथ हमेशा या ब्लेसिंग हमेशा ये नहीं होती कि लाइफ इज हैप्पीली एवर आफ्टर एंड अ बेड ऑफ रोजेस. नो, डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट. द वेरी फैक्ट दैट थ्रू योर मोस्ट ट्राइंग टाइम्स you're able to stay connected and you're able to keep your faith intact, to me that is his biggest blessing. और उसको enjoy करें. अपना connection इतना strong आप गुरुजी से बनाओ कि सोते जागते खाते पीते उठते बैठते आपके दिमाग दिल में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हावी हो. And बाकी everything will fall into place. Just know that Guruji has a grand plan for all of us. He will give us way better than we can plan for or imagine or even deserve. And this is true that whatever we are facing, 90% Guruji takes upon himself. 10% हमें भुगतना पड़ता है और हम उस 10% में भी हम हिल जाते हैं. तो मेरी यही अरदास है सारी संगत से कि गुरुजी के साथ जुड़े रहो और फोकस सिर्फ गुरुजी को बनाओ और किसी चीज को नहीं. Believe you me, everything will fall into place sooner than later. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.